Good morning. In the last lecture, we had a basic understanding relating to how the transaction will be recorded in the books of account of seller as well as in the books of account of buyer. We just had a basic understanding of it. So if we quickly try to revise what we did in the last lecture, in the books of seller, so far as revenue recognition is concerned, we first need to understand that what is a revenue of seller and what is a point in a time when we can recognize such revenue. Now for that we need to refer to Accounting Standard 9, which basically talks about revenue recognition. So basically it talks about when a person should recognize his or her revenue. Whereby we try to understand that in the books of seller, so far as sale of goods are concerned, the profit should be recognized at the time of sale. Profit. But when we are looking at the transactions which are made under hire purchase arrangement, we understood that under the hire purchase system, the price is actually inclusive of interest, that is my time value of money. The price is inclusive of time value of money. So the equation would be like this. It would be cost plus profit is equal to cash selling price, or you can say cash price. In that we'll add interest and we'll have a higher purchase price. So there are two margins which are involved so far as hire purchase transactions are concerned. The one is a profit margin, another is an interest margin. Now, as per Accounting Standard 9, we cannot recognize both at the same time with the full value. Time value of money is spreaded on number of accounting years. The accrual of interest happens only on the occurrence of a time, not before that. It is a time value of money, no? So it can happen only after occurrence of a time. So if time has not occurred, accounting do not permit us to recognize the revenue. Accounting do not permit us. आगे हम जैसे गुडविल पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएंगे, गुडविल के साथ साथ बिजनेस वैल्यूएशन के साथ साथ कैपिटल बजटिंग के साथ हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स आर more towards understanding the cash flow rather than accounting profit. The financial management is more about considering the time value of money. Account ignores it. It don't allow to discount it to the present level. It says that you need to wait for the occurrence of the particular time, and when the time has occurred, then only you should recognize the revenue, not before that. So therefore, so far as interest is concerned, which represent the time value of money, I have no authority to recognize the revenue on the day of sale. I have no authority to recognize the revenue on the date of sale. For that, I would be required to wait for occurrence of the time when such interest or money representing time value of money get accrued, because my accounting is happening on an accrual basis. Are you getting? So when it comes to the accounting in the books of seller, yes, the profit which we have added into our cost
will 100% recognize at the time of sale itself, because when I say that sales means giving a possession and the ownership also. But again, so far as a hire purchase is concerned, ownership is being shifted on the payment of last installment. Then how can I recognize that? Again, question will arise. Now, to contrary that, there is another concept of account which says substance over form. मतलब रियलिटी देखो, सिर्फ लीगल मत जाओ, हो क्या रहा है एक्चुअली? तो एक्चुअली तो वही हो रहा है, the possession, right to use, everything has been transferred. So therefore, with that reason, we can recognize the profit element because of substance over form. Otherwise, ownership is being shifted on the payment of the last installment. Am I clear with this? So far as interest is concerned, we'll recognize at the end of every year, or at the end of at the time when the installment is getting due. It might be 6 monthly, it might be yearly, it depends between the arrangement of two person. So whenever the installment is getting due, your interest also get accrued. Therefore, when the installment is getting due, we'll recognize it as our revenue. So we are revising because we don't have that lecture yesterday. So therefore, it is good to have a revision, small sort of revision before we enter into practical question. So this is all about your accounting in the books of seller. Accounting in the books of seller. I think some student might be there. Hello. सर लेक्चर में हूं, मैं करूं? आपको मिल गया सर मेल? मेरा मिल गया. I hope you got. Now when we are coming to the books of buyer, then again question arises that at which value should I capitalize this asset in my books of account, whether at a cash price or at a hire purchase price, where we got a clarity that yes, we need to recognize the asset at which price? Cash price. See, whatever we're discussing, no, I try to create some practical question on the basis of it and put it by way of MCQ question in our channel. So whatever we will be discussing in any lecture, I'll try to have some 4 or 5 at least MCQs in the channel, which you should try. And that also will help you at the time of revision. That is what an advantage of Telegram as compared to WhatsApp. So that is the reason why we have a Telegram channel this time. And there is no size limit of sharing any document. So when we are coming to the buyer's book, the buyer is required to create the value of asset with which value? Cash price. Why? Because any expense, including interest, मेरी कैश प्राइस थी 50,000, हायर परचेस प्राइस थी 60,000, कॉस्ट थी 40,000. किसकी? सेलर की. सेलर की कॉस्ट कितनी थी? 40,000. उसमें 10,000 प्रॉफिट उसने ऐड किया, कैश प्राइस बिकम्स 50,000. इंस्टॉलमेंट सिस्टम दिया, हायर परचेस प्राइस बिकम्स 60,000. Got it? The entry in the books of seller would be debtors account debit, or you can say hire purchase debtors account debit. You want to segregate the debtors of hire purchase with your normal debtors. So hire purchase debtors account debit to hire purchase sales, or you can say sales. With what amount? Which amount? 50 only. अभी 10,000 का कुछ recognize नहीं कर सकते, because 10,000 अगर मैंने 5 साल के इंस्टॉलमेंट दिए हैं तो it is spreaded over 5 years. तो जितने का सेल बुक हुआ, कितने का सेल बुक हुआ? 50,000 का ना. तो वो एसेट कैसे 60,000 की क्रिएट कर सकता है? वैसे भी हेलो, जो ऊपर के 10,000 है ना, उसके लिए अलग एग्रीमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एन हायर परचेज एग्रीमेंट. Am I clear on this? No? So since the invoice is of 50, the buyer will also recognize 50,000 as the value of asset, and the depreciation and everything would be on this 50,000, not on 60,000. Am I clear?
The principle which we followed here is any expense including interest can be capitalized in the value of asset only up to the date of put to use or ready to use? Ready to use, not put to use. Because your incapability of putting some goods, capital goods into use will not increase the value of asset. Got it? Now, based on the accounting treatment that we are supposed to follow, we understood one thing very clearly, that to record any transaction under the hire purchase arrangement, we need to have clear segregated amount for each installment, that what was a cash price element, what was an interest element, what was an installment element. If we do not have that segregation, or if we are not able to split the installment amount into two parts, the cash element and the interest element, we will not be able to do the accounting properly. So therefore, our initial few questions are based on how to segregate, based on the type of information that probably might have been given in your question. So there are 4 or 5 possibilities which we are trying to discuss. I think there are 4 possibilities that we are trying to discuss here, and we are trying to understand what we are supposed to do in different situations. Clear with that? Sure. Anyone has any doubt relating to this particular concept of accounting? Fine. Now let's go to the pamphlet. You know the different tags that we have attached to each and every concept now. That will help you at the time of revision. This particular questions, they do not ask theory more from this chapter, but whenever they ask a theory from this chapter, the question was fixed, that is the difference between hire purchase and installment sales. And that, I think in the last lecture we had very good discussion on that. So now if you're going to refer this difference, no, I don't see any difficulty in understanding the same. Clear? Now, moving to the practical questions. Now, as I told you, clear? As we discussed that we need to first solve certain questions relating to how to segregate interest and cash element. So let's read the first question. This is a type of question that they may ask for 4 marks. Understand? The weightage of this chapter is around 5 to 6 marks. 6 marks. So if they want to ask something of 4 marks, this kind of question could be very good questions, rather than preparing all the layers and everything. So we are not expecting any 8 or 10 mark question from this chapter, but that does not mean we should not know how to do the accounting. That is not again a difficult questions also.
a little amount of care that you need to take in the whole chapter is how to deal the repossession. That could be partial or full. So that is something where we need to be more careful about. So far as these questions are concerned, now this type of questions are going to become an element of each and every question, because अभी भी हमें accounting treatment के भी question आएंगे ना, तो पहले ये तो exercise हमें करनी ही होगी हर एक question में. Fine. So 3-4 question करेंगे, फिर I don't see any difficulty that you will be facing so far as how to split your installment into cash element and interest element. So let's focus on the first question. What the question says: X purchases a car on a hire purchase system. See, first thing that you observe, that the goods that are covered are not an FMCG products. They are mainly high value assets. That is why anyone need an installment. So X purchases a car on an hire purchase system on 1st January 2011. The total cash price is rupees 4,50,000. जब भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना, तो जो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट आएंगे उनको अंडरस्टैंड करना. व्हाट इज दिस? दिस इज अ कैश प्राइस. कैश प्राइस कितना है? 4,50,000. क्लियर? हाउ इट इज पेबल? ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेबल rupees 90,000 as a down payment and 3 installment of 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460. Now the important point comes. Please pay attention what has been written now. अगर मुझे क्वेश्चन सेट करना है ना, तो मैं यही खेल करूंगा कुछ. पेएबल क्या लिखा है उसके बाद? एट द एंड ऑफ, at the important क्या है सबसे? It is payable end of first year, second year, third year. Now, why this is important? It is important because your time value of money comes only if the time of payment has been deferred. तो अगर ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करूं, that 90,000 you are supposed to pay as a down payment, first installment you are supposed to pay at the time of purchase, second installment at the end of the first year. तो second installment के लिए तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी 2 साल नहीं है, 1 ही साल है. पहले इंस्टॉलमेंट में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ है ही नहीं. इट इज एट P0. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? वापस से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या बोला कि भी कैश प्राइस कितना है? 90,000. सॉरी, कैश प्राइस इज 4,50,000. डाउन पेमेंट 90,000. मतलब क्या? जिस दिन हम लेने गए उस दिन हमें 90,000 देना है. P0 पे. P रिप्रेजेंट पीरियड. कब? टाइम T. यू कैन अंडरस्टैंड P और T, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल टू. तो T0 पे 90,000 आपको देना है. उसमें कहीं पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है. हेलो, उसमें कहीं पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्वॉल्व नहीं है. तो ऑब्वियस सी बात है, सो फार एज अ डाउन पेमेंट आर कंसर्न, देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट व्हिच इज इन्वॉल्व इन इट. देयर इज नो इंटरेस्ट एलिमेंट. द इंटरेस्ट विल कम इनटू द प्ले ओनली इफ द पेमेंट हैज बीन डिफर्ड. पीछे लेके गए हैं, डिले किया है, तभी इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, अदरवाइज कभी नहीं आता है. And when we are further looking at the first installment of 1,70,000, first installment of 1,70,000 is paid on which date? Is it on the date of purchase? No, at the end of the. तो 1 साल का इंटरेस्ट होगा उसमें. समझ में आ रही है ना बात? अगर 1,70,000 पहला इंस्टॉलमेंट आप पहले ही दिन पे करते हो, तो उसमें कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट होगा. तो ये सीधा प्रिंसिपल कम करेगा. आप ना जब फ्यूचर में, या पता नहीं आपके पेरेंट्स ने होम लोन लिया है, तो आप जब अप्लाई करते हो होम लोन के लिए, होम लोन जब आपको वो देते हैं, तो वो पूछते हैं आपको कि पहला इंस्टॉलमेंट इसी में से कटवा दूं या 1 महीने बाद. मंथली होता है ना, तो
तो आपने अगर पहला इंस्टॉलमेंट पहले ही कटा दिया ना, तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट फॉर द फ्यूचर पीरियड वुड बी वेरी लो, वेरी नहीं, बट इट मेक अ डिफरेंस कि जो पेमेंट आपको एक महीने बाद करना है आने वाले 10 सालों तक, उसमें आज एक तुम पेमेंट कर देते हो प्रिंसिपल का, तो प्रिंसिपल सीधा कम हुआ क्योंकि वो T0 पे हुआ। गेटिंग? तो अगर ये 170 T0 पे होता तो उसमें कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन ने तो बोला है क्या, that all installments are payable at the end of the year. At the end of the year. What is the installment amount? 1,70,000, 1,50,000, 108,460, and down payment that we are making. So please do the summation of all this four figure. We are making a payment of 90,000. We are also making a payment of 170. We are also making a payment of 1,50,000 and 1,08,460. 5 lakh. This is your higher purchase price. ठीक है? तो अगर हम डिफरेंस निकाले कैश प्राइस और हायर परचेस प्राइस का, कैश प्राइस इज 4,50,000, हायर परचेस प्राइस इज 5,18,460. दिस डिफरेंस of 68,460 represent what? Interest spreaded over how many installment? 3. So interest spreaded over 3 years. Neither of the first year nor of the last year represent interest spreaded over 3 years. So over a period of 3 years, seller will recognize this interest as an income, and over a period of 3 years, buyer will recognize it as an expense. तो ना बायर पहले दिन एक्सपेंस बुक कर सकता है, डिस्काउंटिंग करके नहीं कर सकता, दैट इज नॉट परमिटेड इन अकाउंटिंग, ना सेलर प्रेजेंट वैल्यू पे उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है एज ए रेवेन्यू. गेटिंग? श्योर? Now how to segregate, how to split? Now for that, to save the time, I have drawn the format which we are supposed to use. Understand? The transaction took place. I'll, rather than putting a year, I'll put the date here. The transaction is taking place on which date? 1/1/2011. On this date, the transaction is taking place. On that particular day, the full 4,50,000 was an outstanding. Getting it? क्वेश्चन अभी तक पूरा पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मेट को हम कैसे आगे यूज करेंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर. एक और इंपॉर्टेंट चीज थी जो क्वेश्चन में पढ़नी थी कि इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू जस्ट कैलकुलेट द इंटरेस्ट पेड बाय द बायर. तो अगर देखो, अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में ये आता है, आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, पेपर खत्म होने आया है, उन्होंने बोला है व्हाट इज एन इंटरेस्ट विद द बायर विल पे, तो ये कैलकुलेशन नहीं करना है. तो क्या करना है, इंस्टॉलमेंट का टोटल करो, कैश प्राइस माइनस करो, दैट इज एन इंटरेस्ट. इफ इट इज एन एमसीक्यू ऑफ 2 मार्क्स, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू ऑल दिस कैलकुलेशन. और देखो क्या ये एक ऑप्शन है उसमें, हाँ तो टिक करो. समझ में आया ना जो मैं बोला? लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क का है तो ये वर्किंग करना पड़ेगा. It is not that every time you are supposed to do in this way only. Depending upon the marks weightage, depending upon the time available. Clear? Interest कितना है? 10% per annum. वो भी देखना per annum है. Per month है तो multiply by 12 करना पड़ता है. हाफ ईयरली है तो multiply by 2 करना पड़ता है. क्वार्टरली है तो multiply by 4 करना पड़ता है. जल्दबाजी कभी नहीं करना. हाँ, जितना टाइम आप दोगे क्वेश्चन को पढ़ने में, उतना सॉल्यूशन फटाफट होगा. जितना फटाफट पढ़ने का ट्राई करोगे, उतने सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होने के चांसेस है. तो पहले दिन जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया, माय आउटस्टैंडिंग अमाउंट वाज 4,50,000 रुपीस. दैट इज व्हाट आई एम सपोज्ड टू पे.
But on the same day, I am making a payment of 90,000, which is my down payment. And the full value is attributable to the principal because that is happening at P0. So therefore, out of this 90, how much is attributable to the principal? I'll say full amount is attributable to principal. There is no interest element which is involved here. इसमें कुछ interest नहीं है. So now, on the same day, now the outstanding principal amount would be how much? It would be 3,60,000. This would be 3 lakh. Am I clear on this? Sure. Now the next event for the whole year won't be anything. Directly the first event would be coming on which date? The first event will come on 31st December 2011. उस दिन क्या अमाउंट आउटस्टैंडिंग है? अब हमारी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज, ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है? पहले इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 1 लाख. अब हमें एक्सरसाइज करनी है इसमें कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व. 1 साल हो चुका है, इंटरेस्ट भी हमें ड्यू करवाना है. तो ये 10% इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट पे. तो 1 साल के लिए, पहले साल 1 साल के लिए कितना पैसा आउटस्टैंडिंग था? 3,60,000. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 1 साल के लिए, पहले साल. ये याद रखना क्योंकि यही कॉन्सेप्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा. जहां पे यहाँ पे अगर थॉट प्रोसेस में गड़बड़ होती है तो आगे वाले क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा. पहले साल, सो हर साल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कम होता जाएगा. सबसे ज्यादा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कब होता है? पहले साल. तो पहले साल 3,60,000 is an outstanding amount. 3,60,000 is outstanding amount on which I am supposed to pay interest at the rate of 10%. So अगर मैं 10% करूं 3,60,000 का, इंटरेस्ट एलिमेंट कितना आएगा मेरा? तो पहले हम क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इंटरेस्ट. किधर गया पेन? लेट मी इरेज, ये बहुत मोटा वाला. पहले हम क्या लिखेंगे? $1,70,000 is not a principal amount. $1,70,000 is an installment amount. Installment includes two things: cash element as well as interest element. तो अगर इंस्टॉलमेंट में से मैं इंटरेस्ट एलिमेंट निकाल दूं तो क्या बचेगा? फिर सिर्फ प्रिंसिपल एलिमेंट. सो देयरफॉर ये 1,70,000 में से, ये 1,70,000 में से अगर मैं ये 36,000 निकाल दूं तो जो बचेगा वो क्या होगा? इंस्टॉलमेंट के अंदर छुपा हुआ प्रिंसिपल. व्हाट इज दैट अमाउंट? 1,20,000. सॉरी, 1,34,000. So now at the end of the first year, now the outstanding principal would be 360 minus 134. What is that amount? 2,26,000. Which the next event directly will be coming on 31st 12/2012. उस दिन ये अमाउंट मेरी आउटस्टैंडिंग होगी. ठीक है. दूसरे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या है? 1,50,000. ठीक है, तो हम लिखते हैं 1,50,000. अब इंटरेस्ट ढूंढेंगे पहले क्योंकि मुझे प्रिंसिपल निकालना है. आउटस्टैंडिंग है 2,26,000, उसका 10% करें हम तो इंटरेस्ट एलिमेंट आएगा 22,000. सो द बैलेंसिंग फिगर 1,50,000 minus 22,000
600, how much? 1,20,000. And outstanding principal now would be 226 minus 127, 400. How much? 98,300. The last installment will be paid on 31st December 2013. On that day, 98,600 would be the outstanding. Installment is 108, no? 108? 460. अब यहाँ ध्यान देना लास्ट में, क्योंकि राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ सकता है, देयरफॉर ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ. लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग होता है? उतना ही तो बाकी है ना, तो अब सीधा डिफरेंस निकालो. आप करो 98,600 का 10% करो, 9860 आना वही चाहिए, लेकिन बहुत ऐसा हो सकता है कि वो राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आए. सो इफ यू फाइंड आउट द डिफरेंस इज 9860, वही आ रहा है ना, वो हो जाएगा सेट. लेकिन फिर भी चेक करना, आप 10% के लिखो, फिर इन दोनों का समेशन तुम्हारा इंस्टॉलमेंट होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा है तो यू बेटर यूज अ डिफरेंस अप्रोच. और देखो डिफरेंस कुछ रुपए से ज्यादा ना हो, अगर है दैट मीन्स ऊपर कुछ गड़बड़ किया तुमने. Am I clear with this? And now the outstanding principal would be, so far as the seller is concerned, on the day of sale he'll recognize sales. कैसे? ये इक्वेशन में अगर अकाउंटिंग भी मैं सोचूं, हम लिखेंगे क्या क्या एंट्री आएगी, लेकिन सिर्फ सेल्स के एंट्री के बारे में सोचूं सेलर के बुक में, तो वो क्या एंट्री डालेगा? पहले दिन हायर परचेस डेटर टू हायर परचेस सेल्स 4,50,000. कब? 1 जनवरी को. 1 जनवरी को. इंटरेस्ट एज इनकम ऑफर कब करेगा? 31 दिसंबर 11 को पहला, 31 दिसंबर 12 को दूसरा, 31 दिसंबर 13 को तीसरा. तो 31 दिसंबर 11 को करेगा. इंटरेस्ट का रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज? 36,000. क्योंकि वो साल के लिए, पहले साल के लिए मेरा इंटरेस्ट इनकम कितना है? सिर्फ 36,000. इंटरेस्ट इनकम में कितना ऑफर करूंगा पहले साल? 36,000. दूसरे साल कितना मैं ऑफर करूंगा इंटरेस्ट इनकम? 22,600. तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट इनकम ऑफर करूंगा? 9860. टोटल इंटरेस्ट है ना, वो हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था साइड में, डिफरेंस 518,460 माइनस 4,50,000, तो इंटरेस्ट का तुम टोटल करोगे तो वही होगा. लेकिन ये पूरा इंटरेस्ट ना तो हम पहले साल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ना तो हम लास्ट ईयर में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. हमको उसको स्प्रेड करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट. Am I clear with this? Sure? 100%? Anyone has any doubt? Fine. I'm giving you 5 minutes. Write down the solution.
I hope everyone has written. Now, before we move to the next question, certain things that you can identify from this question itself would be कुछ बेसिक ऑब्जर्वेशन होने चाहिए हमें. इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वेशन, रटा नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, बिहेवियर क्या है. सबसे पहला तो P0 पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगा. दूसरा, इंस्टॉलमेंट ऑलवेज इंक्लूड इंटरेस्ट. तीसरा, इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है पहले इंस्टॉलमेंट में, सबसे कम है. ऐसा क्यों है? क्यों है ऐसा? बिकॉज सबसे ज्यादा प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग किस में थी? समझ में आ रही है ना बात? हेलो, जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसमें एक और भी तरीका था. अगर ध्यान से सुनना, ये एक और भी तरीका था. अगर मुझे पता नहीं होता, अगर मुझे नहीं पता है कि लास्ट प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग इज 98,600, वो नहीं पता है मुझे कि लास्ट प्रिंसिपल कितना आउटस्टैंडिंग है, 98,600, और सिर्फ मुझे पता होता कि इंस्टॉलमेंट इज 108,460, लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, और मुझे पता होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, तो क्या मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग कर सकता था कि नहीं कर सकता था? हेलो, अगर मुझे नहीं पता होता, बिकॉज हमने 10% अप्लाई करना है किस पे, 98,600 पे करना है. लेकिन अगर वो 98,600 नहीं पता होता मुझे क्वेश्चन में, फिर भी मैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ढूंढ पाता. कैसे? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल जस्ट शो द अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट. ये लास्ट इंस्टॉलमेंट की बात है. दैट इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, अगर हम देखें तो एक होती है कैश प्राइस, कैश प्राइस में हम ऐड करते हैं क्या, इंटरेस्ट, दैट बिकम्स योर एट परचेस प्राइस, और यू कैन से एन इंस्टॉलमेंट, और you can put like principal plus interest is equal to your installment. This is how installments are made, no? अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं पता होता तो क्या मैं ढूंढ पाता? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 98,600 अगर मुझे नहीं पता होता क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में तो तीनों इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास. क्या? कि प्रिंसिपल प्राइस कितनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट कितना, ये तीनों इन्फॉर्मेशन थी. शायद एक ना भी होती तो क्या हम कुछ कर पाते? That is what the next question is based on. Now for that we need to have an understanding कैसे काम करेगा. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से हम अगर सोचते, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट में सबसे कम इंटरेस्ट है, तो सबसे कम इंटरेस्ट जहां पे है, कॉम्प्लेक्सिटी वहां सबसे कम है, इसलिए मैं सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट एक्सप्लेन कर रहा हूं. वैसे में सब इंस्टॉलमेंट का करना है. दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज. हेलो, तो अगर प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100, जिसपे कितना इंटरेस्ट रेट था, 10% इंटरेस्ट लगता, तो इंस्टॉलमेंट कितने का होता? ये सिंपल ना, जो 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में जो इक्वेशन बनाना आता था ना, बेसिक, अटला अटलू तो अटला केटलू, दैट सॉर्ट ऑफ इक्वेशन वी आर डूइंग. सो व्हाट इज द इंस्टॉलमेंट? आई वांट इंस्टॉलमेंट, उसके सामने चाहिए मुझे इंटरेस्ट. तो अगर इंस्टॉलमेंट कितना है, 110, तो उसमें इंटरेस्ट कितना है? लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 108,460. इंटरेस्ट कितना? सो 108,460 मल्टीप्लाइड विथ 10 डिवाइड बाय कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 98, वही आया. अब ये इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दो इंस्टॉलमेंट में से, तुम्हें प्रिंसिपल मिलेगा. या तो तुम ये भी कर सकते हो, तो प्रिंसिपल मिलता तुम्हें, तो तुम्हें अप्लाई करना पड़ता, ढूंढना पड़ता डिफरेंस वापस. द ऑब्जेक्टिव, द पॉइंट इज
There is not only a way in which you can do something. There are multiple ways, but how you are looking at it, that makes a difference. सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी लास्ट इंस्टॉलमेंट में है, इसलिए हम अगर कैश प्राइस मुझे नहीं पता है, कैश प्राइस और पूरे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ही कैश प्राइस पे डिपेंड है और वो ही नहीं पता है मुझे, तो हम सोचेंगे अब तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इंस्टॉलमेंट में छुपा हुआ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ऐसा नहीं है। So far as you know what is the rate of interest, so far as you know what is an installment amount, you can always do that. हेलो, अब दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है, और ऊपर से भी दूसरा नीचे से भी दूसरा, ये क्वेश्चन में तो सेकंड लास्ट, उसमें दो इंटरेस्ट एलिमेंट होंगे। क्यों? एक तो दूसरे साल का और तीसरे साल का, वो ना प्रिंसिपल डबल आउटस्टैंडिंग होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो वहां उस हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। Now, based on this principle, the next question has been drafted. So let's understand. I hope you understood what I'm trying to say in this. ये concept को थोड़ा दिमाग में रखना, इसके बेस पे ही next question हमारा based है. So let's come on the next question and let's understand what we should do in case when the rate of interest installments are given, but total cash price is not given to us. ठीक है, यही सिचुएशन है। Now let's understand the information of the question that has been given. और थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ पे ना बहुत बार स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी, तो कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसी कॉन्सेप्ट पे, और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है यहाँ पे, लेकिन आई प्रिफर टू सेव अ टाइम, इट इज देयर। और उसका मतलब ये नहीं कि फिर आप देख देख के सिर्फ लिखोगे। क्या अप्रोच होना चाहिए समझ लो, किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू अरेंज द इंफॉर्मेशन। फॉर्मेट के लिए, रट्टे के लिए नहीं करते हैं। तो फॉर्मेट देखो, ट्राई टू डू इट, यू सी वेयर यू आर गेटिंग स्टक, कहाँ अटकते हो तुम, वरना नहीं पता चलेगा। क्योंकि क्लास में 3-4 महीने जो हम करेंगे ना, वो वही करेंगे कि हमें पता चले हम कहाँ अटकेंगे। अगर देख के लिख लिया ना तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दिमाग कहाँ अटक रहा है, कैलकुलेशन में क्या मुझे समझ में नहीं आता। और जहां अटका वो पॉइंट देख लो, हाँ अच्छा फाइन, इस तरीके से करना। क्योंकि एक बार ना एक जगह जहां पे अटका है दिमाग, वहां आपने देख लिया, ओके फाइन दिस इज हाउ आई नीड टू डू, फिर वहां दूसरी बार नहीं अटकेगा। लेकिन सिर्फ देख के लिख लिया तो क्या होगा, पता ही नहीं चलेगा। होता है ना बहुत बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आधे पे आके रुक के पता चलता है आगे शू करो। ये इसलिए होता है कि तुमने क्वेश्चन देखा था, सॉल्व नहीं किया था, या देख देख के लिख लिया था। अगर तुम सॉल्व करो उसको तो ही तुम्हें पता चलता है कि कहाँ मेरा लॉजिक अटक रहा है। कॉन्फिडेंस तभी आता है, तो जो कॉन्फिडेंस आता है ना, तो इट्स फाइन, आई एम एबल टू मैनेज। डिफिकल्ट क्वेश्चन है फिर भी आई एम एबल टू मैनेज, तो तभी आता है। अब जब तक सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो आप जो सॉल्यूशन है ना, उसको फॉर्मेट के नजरिए से देखना, और वो भी आई प्रेफर कि एक बार देखो शांति से, ओके फाइन दिस इज आई एम सपोज्ड टू डू, एंड डू इट ऑन योर ओन देन। क्लियर? फाइन। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Again, the question is from your module. X purchases a television, again capital goods, on an hire purchase system. As per the terms, he is required to pay rupees 3,000 as a down payment. This is happening at P0. Rupees 4,000 at the end of the first year, that is at P1. 3,000 at the end of the second year, and लिखा इसलिए मैं लिख रहा हूँ P2. 5,000 at the end of third year, so this is P3. Interest is charged at the rate of 12% per annum. You are required to calculate total. तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें डाउन पेमेंट दिया गया है कितना, डीपी दिया गया है हमें 3,000 का, पहला दूसरा और तीसरा इंस्टॉलमेंट अगर हम देखें तो 3,000, 4,000 और 3,000 ना, थर्ड वन 5,000, आई एम सॉरी ये उल्टा लिखा है, ये 4 है ये 3 है।
4,000, then 3,000, then 5,000. So टोटल अगर हम देखें उसका हायर परचेस प्राइस, तो टोटल हायर परचेस प्राइस इज 15,000. 15 नो, लेकिन हमें क्या ढूंढना है? हमें हायर परचेस प्राइस नहीं ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है? उसका कैश प्राइस. अब वो नहीं पता है क्योंकि ये 3 इंस्टॉल. चलो डाउन पेमेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, बट व्हाट अबाउट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट? उसमें छुपा हुआ कैश प्राइस कैसे ढूंढे हम? यही हमें क्या करना पड़ेगा, जो आगे वाले क्वेश्चन में आपको मैंने एक्सप्लेन किया ना, रिवर्स कैलकुलेशन. दैट इंस्टॉलमेंट इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट. हटाओ उसको, जो बचा वो कैश. अब ये हम पहले साल से नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि पहले साल में तो 3 साल का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा. तो मैं वहां से एंटर करूं जहां से एंट्री इजी हो. तो सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे है? यू गॉट नो, रट्टा नहीं है ये. लॉजिक से आप चाहो तो पहले साल भी कर सकते हो, मैथमेटिकली यू कैन डू दैट, बट द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी would be more, and then you second year also repetitively need to do the same exercise. उससे बेटर है कि आप रिवर्स ऑर्डर में जाओ. कब? जब तुम्हारे पास क्वेश्चन में कैश प्राइस ना हो. क्वेश्चन ने जब तुम्हें कैश प्राइस नहीं दिया है तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे. सो नाउ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? फाइन. नाउ प्लीज पे अटेंशन टू द सॉल्यूशन. वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम third installment. What is the rate of interest? 12%. Before we go to the working, my third installment is, जैसे मैंने बोला ना कि सॉल्यूशन जो लिखा हो दैट इज जस्ट फॉर रेफरेंस. अंडरस्टैंडिंग में कभी कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे. इट इज जस्ट टू सेव अ टाइम. मैं फॉर्मेट ड्रॉ करूं, लिखूं, टाइम बचे, इसीलिए मैंने लिखा है. कॉन्सेप्ट तो थॉरली ही अंडरस्टैंड करना है. सो थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का है हमारा? अभी हमने पढ़ा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, सो प्रिंसिपल अगर 100 हो, यहाँ पे इंटरेस्ट है 12, तो इंस्टॉलमेंट वुड बी, सो 112 पे 5000, तो 12 पे कितना? बिकॉज लास्ट में तो एक ही इंटरेस्ट होगा, एक ही साल का. 535 राउंडिंग ऑफ. तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा? 535. नाउ लेट्स सी इज इट दैट 535 पॉइंट कितना था? 7 था. सो देयरफॉर 536. यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग? सो नाउ पे अटेंशन टू व्हाट इज देयर इन द क्वेश्चन. The first installment is 5,000. How this 536 has been calculated? वही ना, लेकिन हमने अंडरस्टैंड किया ऐसा क्यों. सीधा 12 डिवाइड बाय 112 नहीं करेंगे, हमने लॉजिक से किया. लॉजिक तो सेम रहता है, P प्लस I इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट. ठीक है. अगर मैं ये 5,000 में से, अब ध्यान से देखना, अगर ये मैं 5,000 में से इंटरेस्ट एलिमेंट हटा दूं तो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश एलिमेंट वुड बी 4464. Am I right? सेग्रीगेट किया कि इंटरेस्ट कितना और कैश एलिमेंट कितना. अब ध्यान देना, अब आते हैं उसके आगे वाले इंस्टॉलमेंट पे. He was raising hand. That is what you were saying. You were saying something? आगे आजा. अजीब है. इधर ये मैं नहीं लेके आऊंगा उधर यार. It's not possible. I'm coming to. यहाँ पे मेरी शक्ल में कुछ नहीं है, जो देखना तो वही देखना. शक्ल भी दिखेगी उधर, है ना. तो जिसको नहीं दिख रहा है ना, प्लीज आगे आ जाना. क्लास अभी भरा हुआ नहीं है तो फिर लोग घर पे बैठे हुए हैं तो क्या दिक्कत.
Comfortable beta? Very good. Yes, we are not starting from the first installment because the first installment includes principal of first, second and third. 3 प्रिंसिपल का जो आउटस्टैंडिंग था, पहला क्वेश्चन देखो, सबसे ज्यादा 3,60,000 पे इंटरेस्ट लगाया पहले क्वेश्चन में, तो वो नहीं पता है क्योंकि उसमें 3 लेवल के प्रिंसिपल जुड़े हुए हैं, पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का। हेलो, वापिस आओ, चलो पहले क्वेश्चन पे ना, तभी ये समझ में आएगा। पहले साल का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना है? ठीक है, क्या है ये 360? एनालिसिस किसे बोलते हैं ना, तुम्हें रट्टा नहीं मारने दूंगा मैं। ये 360 कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा, ये प्लस ये करो टोटल इनके लोग। आया? मतलब पहले साल का प्रिंसिपल जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है एक्चुअली? पहले साल का प्रिंसिपल प्लस दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस तीसरे, इसलिए तो ज्यादा अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाता है। तो वहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे ना तो नहीं मिलेगी अमाउंट। एक ही प्रिंसिपल जहां पे है वो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक ही प्रिंसिपल कहां पे है? लास्ट वाला। Therefore we started with the last. Everyone has a clarity. You did not require to shake your head in everything. Ha. If you're not getting it, you are paying fees to us again. So therefore, do not compromise with your grasping knowledge or understanding. ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है कि हर एक 2 मिनट पे आप मुझे पूछो, जहां पे अटकते हो वहां पूछो। ऐसा પછી બીજી રીતે वसूल ना करता, हमें हैरान करे ना। हाँ, comfortable, convinced, good. So therefore now when we are coming to this question, please understand, क्योंकि अभी जस्ट क्योंकि अच्छा इसने पूछा, उसका मतलब क्या? दूसरे साल का जो होता है, हमने तीसरे साल से स्टार्ट किया, उसमें एक ही साल का इंटरेस्ट होता है। दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होता है वो 2 प्रिंसिपल पे लगता है, दूसरे साल का प्रिंसिपल प्लस तीसरे, नॉट फर्स्ट। फर्स्ट वाला थोड़ी होता है दूसरे साल में, दूसरे साल का और तीसरे साल। Therefore now understand this 4464, which is a principal that has been added in the second installment amount. सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना है हमारा? 3,000। Therefore जो दूसरा इंटरेस्ट होगा वो इस पे होगा। The equation is going to remain same, 112 पे, because देखो ये 3,000 और जो आउटस्टैंडिंग है 4464, but that is for next year. Both are inclusive of interest. 3,000 तुम्हारा इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, सो 112 पे 12, तो अब ये कंबाइन, क्योंकि दूसरे साल में इंटरेस्ट 2 साल पे होगा, तो 7464 पे कितना? 799 point. So that comes to how much? अब ये 800 किस में डिडक्ट करोगे? 800 फिर 7464 से डिडक्ट मत करो, किस में से डिडक्ट करो? वो 3000, बिकॉज 3000 इज योर सेकंड इंस्टॉलमेंट। हेलो, तो आपको ये 800 रुपए कहां से डिडक्ट करने हैं? इसमें से डिडक्ट करने हैं। सो नाउ यू कैन से दैट द सेकंड इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल इज 2240, सेकंड का प्रिंसिपल। ठीक है, यहां से हमने डिडक्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे चाहिए क्या? ये वाली अमाउंट, क्योंकि ये वाली अमाउंट पे पहले साल का इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, और पहले साल का मेरा इंस्टॉलमेंट कितना था? 4000। सो टोटल इज 10,000। वापिस सेम इक्वेशन, 112 पे 12, तो 10,664 पे कितना? 11424, no, मतलब 1143। So that is what
इज मेंशन हियर। अब वो प्रिंसिपल कितना, तो मेरा पहला इंस्टॉलमेंट था 4000 का, उसमें से डिडक्ट किया, सो इसका प्रिंसिपल आ गया ये। उसके आगे क्या है, डाउन पेमेंट, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं होता है, 3000 पूरा डाउन पेमेंट। इफ यू डू द समेशन ऑफ ऑल दिस यू विल गेट द प्रिंसिपल। एट द सेम टाइम इसमें से डिडक्ट करके उसमें भी ऐड करोगे तो भी वही अमाउंट आएगी, क्योंकि हम आ ही रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। समझ में आ रही है बात? वापिस से, क्योंकि क्वेश्चन डाइजेस्ट करने में थोड़ी देर लगती है, आई नो। सो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट गेटिंग, क्वेश्चन इज लाइक दैट। वो ऐसा होता है ना कि यार मुझे कब नहीं पड़ी भाई, कोई नहीं पड़ी रही, बता खाली हाँ 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 कर। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। द सिचुएशन इज अ सिचुएशन वेयर the cash price is not known to us. Cash price is not known to us. Interest and installment has been given to us. I need to find out the cash price. So I need to see how can I reduce my exercise. I can reduce my exercise if I enter from the back door, and the back door is last installment, क्योंकि उसमें एक ही साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो फ्लो वी अंडरस्टूड फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे होता है, पहले वाले में। क्यों? क्योंकि उसमें 3 सालों पे इंटरेस्ट, 3 साल की जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग थी उस पे इंटरेस्ट था, जबकि लास्ट वाले में सिर्फ एक प्रिंसिपल 1 साल का आउटस्टैंडिंग था उस पे था। तो हम कहां से एंटर हुए, लास्ट ईयर से। रिवर्स कैलकुलेट किया। रिवर्स कैलकुलेट मतलब इंस्टॉलमेंट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, दैटफॉर वी डिड 112 पे 12, 100 पे 12 नहीं किया। क्यों? इंस्टॉलमेंट इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई। So we found out कि भाई लास्ट इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल कितना, लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना। अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल है दैट इज समहाउ आल्सो इंक्लूड्स सेकंड ईयर्स इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट था वो किस पे लगा था, सेकंड ईयर के प्रिंसिपल प्लस थर्ड ईयर का प्रिंसिपल। इसलिए हमने ऐड किया, वापस सेम प्रिंसिपल 112 वाला निकाला, इंटरेस्ट एलिमेंट, करंट प्रिंसिपल से डिडक्ट किया, टोटल अमाउंट से डिडक्ट किया, आगे लेके आए, फर्स्ट ईयर टोटल किया, 112 किया, अलग कर दिया। ठीक है, अंडरस्टूड? वन मोर वे ऑफ लुकिंग एट इट, दोज हु आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, अगेन दिस माइट हेल्प यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई एम ड्रॉइंग a timeline, I'm not good at drawing, I'm trying for it. So if I'm drawing a timeline, this is P0, P1, P2 and this last year P। ठीक है, यहां पे जो इंटरेस्ट होता है, क्या हो गया रे, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है लिखने नहीं दे रहे मेरे को, यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है दैट इज ओनली ऑन 1 ईयर। P2 का जो इंटरेस्ट होता है वो खुद पे भी होता है प्लस इन दोनों का समेशन। P1 पे जो इंटरेस्ट लगता है वो खुद पे भी होता है, उसके साथ साथ ये और उसके साथ साथ इस प्रिंसिपल दोनों पे होता है। हम कहां से एंटर हुए, हम एंटर हुए यहां से, पहले 1 ही साल का था, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट एलिमेंट है, इसमें 3 साल का इंटरेस्ट एलिमेंट है। समझ में आ रही है ना बात? टाइम फ्रेम पे भी देखो, P0 डाउन पेमेंट में तो कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट है ही नहीं, therefore every time when we eliminated the interest from the respective installment, that principal we carried forward further। क्यों आगे वाले साल में लेके गए? क्योंकि आगे वाले साल पे इंटरेस्ट इस पे भी लगा है। तीसरे साल की जो प्रिंसिपल थी उसको हमने कैरी फॉरवर्ड करके दूसरे साल के इंस्टॉलमेंट में ऐड क्यों किया? क्योंकि दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है वो दोनों पे लगा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? और पहले साल में तीनों पे लगा है, इसलिए हम वो प्रिंसिपल को कैरी फॉरवर्ड करते गए, क्योंकि जो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है वो
आगे वाले साल के लिए वो मेरा बेस बनेगा इंटरेस्ट के लिए. Am I clear with this? Sure. Anyone has any doubt? Start writing. कहना कहूँ बूंदी के लड्डू कहूँ काढा પરાગ તારું માઇક ચાલુ છે.
Everyone from online has written? Yes, sir. Fine. We are stopping here for the day. So break of 15 minutes and then we'll restart. Thank you, sir. Yeah.